حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، در منصور قرآن کے سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے۔ ہم بھی تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدہ رقیہ نے وفات پائی تو ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میری کوئی اور تیسری بچی ہوتی تو میں اس کا بھی حضرت عثمان سے نکاح کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ انسانوں میں سے کسی کو یہ دولت سعادت حاصل نہیں ہوئی جس کے نکاح میں پیغمبر خدا کی دو صاحبزادیاں ہوں۔ کوئی ایک دکھا دو، نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و کرامات ہیں، جن میں سے ہم چند بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت دیکھیے۔ صحابہ میں سے ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر حاضر ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص تم سے میرے پاس آتا ہے جس کی آنکھوں میں زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس صحابی نے عرض کی، یا خلیفہ رسول اللہ، کیا حضور علیہ السلام کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وحی نہیں بلکہ نور قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ جس رات کی صبح کو آپ شہید ہوئے، آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، کل تم میرے ساتھ ہی افطاری کرو گے۔ اگلے دن آپ نے اپنے کسی ساتھی کو اپنے مخالفوں سے مقاتلہ کی اجازت نہ دی اور خود شہید ہو گئے۔ انہی ایام میں سعید غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کا عصائے مبارک چھین لیا اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر اسے توڑ دیا۔ لوگوں نے اس کے فعل قبیح پر واویلا کیا۔ اسی وقت اس کے گھٹنے میں ایک بیماری پیدا ہو گئی جس کے سبب سال کے اندر وہ مر گیا۔ یہ ایک سقہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک نابینا شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ دوران طواف وہ کہتا تھا، اے خدا مجھے بخش دے، اے خدا مجھے بخش دے، اگرچہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں نے سن کر یہ کہا، ارے ایسی جگہ ایسی باتیں کہنے لگا، مجھ سے ایک گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، جس روز حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا، میں نے ایک صحابی کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اگر حضرت عثمان غنی شہید ہو جائیں تو ہم ان کے ننگے چہرے پر تماچا ماریں گے۔ جب لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تو ہم آپ کے گھر میں داخل ہوئے
उस वक्त आपका सर आपकी बीवी के गोद में रखा हुआ था। मेरा साथी ने अपनी बीवी से कहा, जरा इनका चेहरा नंगा करो। आपकी बीवी ने हमसे मकसद पूछा। मैंने कहा, मैंने कसम खा रखी है कि आपकी शहादत के बाद आपके मुंह पर तमाचा मारूं। आपकी बीवी ने कहा, तुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सोहबत और रिफाकत और आपकी 2 बेटियों से निकाह का कोई पास नहीं। आपकी बीवी ने आपकी बहुत से और फजाइल बयान किए। मेरा साथी सुनकर वापस चला गया, लेकिन मैंने उनकी बातों की तरफ चंदा इल्तिफात ना किया और आपके मुंह पर तमाचा मार दिया। आपकी बीवी ने कहा, अल्लाह ताला तुझे माफ ना करे, तेरा हाथ सूख जाए और तेरी आंखें अंधी हो जाएं। खुदा की कसम, मैं अभी आपके घर की दहलीज से बाहर नहीं आया था कि मेरा हाथ सूख गया, आंखें बेनूर हो गई। अब मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा ताला मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो जिन 3 दिन मस्जिद नबवी की छत पर नूहा यानी रोते रहे और आपकी शान में अशार भी पढ़ते रहे। हजरत अदी बिन हातिम ताई का बयान है कि जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, मैंने हातिफ को ये कहते हुए सुना, इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु को राहत व आसाइश की नावेद दे दो, वो गुस्सा व गज़ब शहीद हुए, उन्हें बख्शिश व मग़फ़िरत और बाग़ रिज़वान की खुशखबरी दे दो। जब मैंने दोबारा देखा तो कोई शख्स मौजूद न था। जब हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, तो 3 दिन तक आपकी तदफीन ना हो सकी। नागाह हातिफ गैबी ने आवाज दी कि इसे दफन कर दो, लेकिन इसका जनाजा ना पढ़ो, क्योंकि इसका जनाजा तो अल्लाह जल्ला व आला ने पढ़ दिया है। ऐन 3 दिन के बाद जब रात के वक्त आपको जन्नतुल बकी की तरफ तदफीन के लिए ले जाने लगे, तो चंद सवार जनाजा उठाने वालों के पीछे जाहिर हुए। जनाजा उठाने वालों पर खौफ हिरास छा गया। चुनांचे करीब था कि वो आपके जनाजे को छोड़कर भाग जाते कि उन सवारों में से एक ने कहा, जमे खातिर रखो और खाइफो हिरासा ना हो, हम आ गए हैं, हम उनके दफन में शरीक होंगे। आपको दफन करने वालों में से बास का बयान है, बाखुदा वो सवार कोई और नहीं बल्कि फरिश्तगान रहमत थे। हज के मौसम में एक काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंचा। उस काफिले में एक शख्स ऐसा था जो हजरत सैयदना उस्मान गनी को इज्जत व तौकीर की निगाहों से नहीं देखता था। अचानक वो काफिले से जुदा हो गया और काफिले के साथ हजरत उस्मान गनी के मशहद पर उस बहाने से हाजिर हुआ कि वो दूर रहे। तमाम अहले काफिला वहां गए और सलामती से वापस आ गए। वापसी पर वो भी उनसे मिला। अचानक काफिले में एक दरिंदा आओ बुका आया और जिसने आते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अहले काफिला समझ गए कि ये सब कुछ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेहुरमती की वजह से हुआ है। असहाब सलासा की करामतों में से एक करामत यह भी है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हजरत उस्मान का जिक्र खैर कर रहे थे कि कहते थे कि मैं हजरत उस्मान को हमेशा बकलमे खैर ही याद करूंगा। ये इसलिए कि एक दिन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और कहीं चल दिए। मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि आप एक जगह जाकर बैठ गए। आपने मुझसे पूछा, अबू ज़र कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। इसी असना में, इसी दरमियान में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु
आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर कैसे आना हुआ? हजरत अबू बकर ने अर्ज की, अल्लाहु आलिम व रसूलहू बाद अज़ा। हजरत सैयदना उमर आए और हजरत अबू बकर के दाईं जानिब बैठ गए। आपने उनसे भी यही सवाल किया। फिर हजरत सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु आए और हजरत उमर के दाईं जानिब बैठ गए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 संगरेजे उठाए और हाथ में लेकर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। मैंने सुना कि आपके मुंह से शहद की मक्खी की तरह आहिस्ता आहिस्ता आवाज आ रही थी। फिर हुजूर अलैहि सलाम ने वो संगरेजे जमीन पर फेंक दिए और खामोश हो गए। फिर संगरेजे उठाकर हजरत अबू बकर के हाथ पर रखकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब संगरेजों को जमीन पर रख दिया तो खामोश हो गए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने संगरेजे उठाए और हजरत उमर के हाथ पर रखकर मशगूल तस्बीह हुए। फिर संगरेजे जमीन पर रख दिए और खामोश हो गए। बाद अज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम ने संगरेजे उठाकर हजरत उस्मान के हाथ पर रखे और तस्बीह करना शुरू कर दी और फिर उन संगरेजों को जमीन पर रखकर खामोश हो गए। अल्लाहु अकबर। अंसार में से एक शख्स को मुस्लिम कज़्ज़ाब के कत्ल के दिन शहादत नसीब हुई तो शहादत से पहले उसे लोगों ने ये कहते हुए सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक हैं, उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हैं, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन हलीम रहीम है। अल्लाह अकबर। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खासियतें हैं। और भी बहुत सारी फजीलतें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम की सवाने हयात और उनके फजीलतें सुनने की तौफीक रफीक अता फरमाए।